Revision of lesson 6 lines and angles. What is a line? A line is an infinite combination of points. What's a line segment? A finite combination of points. What is a ray? Ray is infinite on one side and it stops on one side. Ray AB is written like this. But ऐसे होता तो ये रे बी ए हो गया. So A has infinite side, B has infinite side, ray AB, ray BA. Line segment AB is denoted like this and line AB is denoted like this. Collinear points are those points which are in a straight line. There can be 3 collinear points, 2 collinear points, 4 collinear points. A, B, C collinear, X, Y collinear, D, E, F, G collinear. And non-collinear points are those where a single line cannot pass through it. Point ABC, all three are not collinear because one single line cannot pass through them. Arms. कोई भी एंगल हो उसके दो आर्म्स होते हैं और वो दोनों हमेशा रे होते हैं. सो इफ आई से एक्स वाई जेड तो आर्म इज रे एक्स वाई एंड रे एक्स जेड. वर्टेक्स इज द पॉइंट एक्स जहां पे एंगल बन रहा है, एंगल वाई एक्स जेड or ZXY. This angle has two names, YXZ or ZXY. Acute angle, something which is more than 0 less than 90. 0 और 90 के बीच में. Right angle, exact 90 degree. Obtuse angle, more than 90 degree but less than 180 degree. 90 और 180 के बीच में. Straight angle, exact 180. So exact 90 is right angle, exact 180 is a straight angle. Reflex angle सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जो भी दिया हुआ एंगल है उसको 360 में से माइनस कर दो, थीटा. So if I say that this angle is 30 degree, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? 360 minus 30, 330 degree. And reflex angle is always between 180 and 360. Complementary angles, those angles whose total is always 90. Supplementary angles, those angles whose total is always 180. और supplementary angles का दूसरा नाम है linear pair. Linear pair is basically a straight line and a branch. एक straight line के ऊपर एक branch create हो रहा है, तो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B का टोटल 180 होगा. They are called supplementary angles और linear pair. और complementary दिखाना है तो एक 90 डिग्री के बीच में रे. This is angle A, this is angle B, and A plus B is 90. Adjacent angles मतलब पड़ोसी angles, बाजू बाजू के angles next to each other. So this angle X and angle Y are adjacent angles because they are touching each other. इसका एक technical definition है, adjacent angles are those angles which has one common arm. दो एंगल जिसका एक कॉमन आर्म होता है are called adjacent angles. So you can see here angle A B D में BD है
और एंगल सी बी डी में भी बी डी है. सो बी डी इज द कॉमन आर्म and therefore these two angles are adjacent angles. Vertically opposite angles is a cross in which two set of vertical angles are created. These two are vertically opposite angles which are always equal. These two are vertically opposite angles which are always equal. Linear pair मतलब supplementary मैंने already समझा दिया है. A straight line and a branch. Then these two angles are supplementary linear pair, total 180. Intersecting lines, those lines which cut each other at a single point O. And not intersecting matlab parallel lines which do not intersect each other. Pairs of angles, इसमें कुछ नहीं है सीखने लायक. Assumption of angles for solving the sums. Whenever you have to solve a sum, you have to choose something as x. And the minute you choose x, बाकी सारे एंगल धीरे धीरे रिवील हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये x है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये भी x है. दूसरी चीज, PQ is a straight line, this is a branch and this angle is x. तो ये कितना 180 माइनस एक्स. क्यों 180 माइनस एक्स? बिकॉज इन दोनों का टोटल 180 होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो जब भी लीनियर पेयर है अजम्पशन विल बी एक एंगल x, दूसरा 180 माइनस एक्स. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फिगर. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ ब्रांच. मैं इसको अगर x लूं तो ये अपने आप 180 माइनस एक्स हो जाएगा. इसमें कोई खास अजम्पशन नहीं, x और y अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो टोटल 180 नहीं हो रहा है तो x 180 माइनस एक्स नहीं होगा. तो x एंड y. बट इफ somebody tells me angle AOB is 140, तो पूरा एंगल AOB 140 डिग्री है. तो ये एंगल अगर मैं x लूं तो ये कितना 140 माइनस एक्स. Quickly we'll go through the sums which have numbers. AOC BOE 70, AOC BOE का टोटल 70. जनरली दोनों सेम सिंबल करने का मतलब है बोथ आर इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल, तो यहां पे डबल आर्क. टोटल 70. BOD 40, BOD 40. अब BOD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए. तो एक रेड एंगल इंस्टेंटली मिल जाता है, वो है ये 40. और अगर ये 40 है, टोटल 70 था, तो ये 30, 40 प्लस 30 70, 30 मिल गया. अब ये एंगल कैसे ढूंढेंगे? लीनियर पेयर. AB इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज फर्स्ट ब्रांच, दिस इज सेकेंड ब्रांच. ये एंगल कितना? तो स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, and that 180 degree is made up of three parts: 40, 30 and the black angle which we are supposed to find out. 40 plus 30 70 सामने माइनस हो जाएगा, 110 आंसर. और ये एंगल कितना? 40 का लीनियर पेयर. Once again I am showing you how. Look at the straight line AB and OD. A B O D, जिसमें से ये एंगल 40 है, तो ये 180 माइनस 40 होगा, मतलब आंसर 140.
every single part you have to learn how to write by looking at the lecture videos. तो सम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सारे एंगल्स मिल जाते हैं, बट प्रॉब्लम इज हाउ टू राइट. अनदर थिंग, रिफ्लेक्स सीओई पूछा है, जो कभी भी दिखेगा नहीं. रिफ्लेक्स एंगल्स आर नॉट विजिबल. रिफ्लेक्स एंगल सीओई नीड्स टू बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला 360 माइनस एंगल सीओई. और सीओई एंगल दिखेगा फिगर में. व्हाट इज एंगल सीओई? COE 110. So reflex COE is 250. POI 90, हमें C फाइंड करना है. If this is 90, the remaining angle is also 90 because this is a straight line and this is the branch. तो ये लीनियर पेयर हो गया, तो ये 90 तो ये भी 90, बट द रेशियो ऑफ A एंड B इज गिवन एज 2:3. तो A is 2x, B is 3x, and 2x plus 3x together create 90 degree. 2x plus 3x 90, 5x 90, x 18. और अगर x 18 तो 2 इंटू x 36 डिग्रीज, 3 इंटू 18 54 डिग्रीज. 54 का वर्टिकली ऑपोजिट 54 और 54 का लीनियर पेयर. इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन. You see a straight line and a branch out of which this angle is 54. The remaining angle is how much? 180 minus 54, which is 126. मिल गया C. Angle C is 126 degrees. PQR PRQ सेम है. PQR ये ग्रीन एंगल इज इक्वल टू PRQ ये ग्रीन एंगल. प्रूव दैट PQS PRT भी सेम है. बाहर के दोनों एंगल सेम प्रूव करने. इट्स वेरी वेरी इजी सम. स्टार्ट फ्रॉम 180 इज इक्वल टू 180. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. ऑल्सो PQR is equal to PRQ. Subtract them. बहुत सारी मेथड होती है, 5 अलग मेथड से सेम सम कर सकता हूं मैं, तो मुझे जो इजीएस्ट लग रहा है वो मैं सिखा रहा हूं. 180 माइनस PQR एंड 180 माइनस PRQ. बट व्हाट इज 180 माइनस PQR? PQR ये है, तो 180 माइनस PQR इज द रिमेनिंग एंगल PQS, और PRQ ये एंगल है, तो 180 माइनस PRQ इज दिस एंगल PRT. Hence proved PQS is equal to PRT. X plus Y is equal to W plus Z. Prove AOB is a line. AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए मुझे x प्लस y को 180 दिखाना है, क्योंकि x प्लस वाई 180 मतलब x प्लस वाई लीनियर पेयर, मतलब AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो चलो देखते हैं x प्लस वाई 180 कैसे होगा. अराउंड O देयर इज 360 डिग्री. ये फैक्ट है, कोई भी पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल 360 होता. देयरफॉर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज 360 डिग्रीज, क्योंकि पॉइंट O के अराउंड है x, y, z, w. फुल सर्कल हो गया. x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360, बट डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई. w प्लस जेड बन गया x प्लस वाई.
विच इज 2x प्लस 2y, 2 कॉमन, और वो 2 कॉमन यहां डिवाइड हो जाएगा x प्लस y 180. Therefore x and y linear pair, therefore AOB is a line. Ross is half of cos minus pos. ये एक बहुत सीरियस प्रूफ दैट सम है. इसको करने की बहुत सारी मेथड्स है. आई एम शोइंग यू द इजीएस्ट. रॉस इज हाफ कॉस माइनस पॉस. इसमें रॉस को x ले लो. अब ये 90 है, तो स्ट्रेट लाइन और ब्रांच रूल के हिसाब से दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ब्रांच, तो 90 का लीनियर पेयर भी 90 होगा. अगर ये 90 है और ये x, तो बचा हुआ कितना? 90 माइनस एक्स, और ये तो 90 दिया हुआ है. नाउ यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज रॉस, एंड रॉस इज इक्वल टू x, खत्म हो गया. राइट हैंड साइड इज हाफ कॉस माइनस पॉस, हाफ QoS, कितना एंगल है? QoS ये है 90 प्लस एक्स, माइनस पॉस कितना है? PoS 90 माइनस एक्स. बस मैथमेटिकली सॉल्व, you will get the answer. Half of 90 plus x minus 90 plus x. 90 minus 90 cut, half of 2x, 2 and a half का 2 cut, x. Left hand side x, right hand side x, hence proved. It is given that angle XYZ is 64. Angle XYZ 64. XY is produced to point P. XY को प्रोड्यूस किया P तक, ये हो गया P. इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को बाइसेक्ट करता है, तो ये ZYP इज दिस ब्लू एंगल, और उसको बाइसेक्ट करना मतलब बीच में से 50-50 में डिवाइड करना, तो ये सेम है, मतलब x x एंड XYQ. हाँ, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP. तो पहले डू यू सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which contains three angles 64, x and x. Therefore x plus 64 is together creating a linear pair. 64 सामने माइनस हो जाएगा, 1 1 6. x is equal to 116 divided by 2, 58. तो ये 58, ये 58. फाइंड एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू 64 प्लस 58. एक्स वाई क्यू इज 64 प्लस 58, 120. एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी. रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब 360 माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी 58 है, सो 360 माइनस 58, 202 है, 302. अब मेन चीज ऑफ दिस चैप्टर, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल सिस्टम. This is the most important part which will continue for 5 more chapters and in 10th standard.
wherever you see a system of parallel lines and a transversal, lot of relationship comes into picture. It's like saying, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एक कपल अपने आप ऑटोमेटिक माँ और बाप बन जाते हैं, उनके पेरेंट्स अपने आप दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं, फिर माता पिता के भाई बहन सारे मौसा मौसी काका काकी मामा मामी बन जाते हैं. वैसे जैसे ही पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल हिट करता है, लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, अ यूनिक सिस्टम टेक्स बर्थ. और वो यूनिक सिस्टम है द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, जिसको हम नाम दे देंगे स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. सबसे पहला और सबसे इजी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ए इज इक्वल टू सी, B is equal to D, E is equal to G, H is equal to F. ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है जो इक्वल है. सेकेंड, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन और ब्रांच होती है. A प्लस डी 180, B प्लस सी 180, लीनियर पेयर. A प्लस बी ऑल्सो 180, C प्लस डी 180. सिमिलरली नीचे वाले पैर के लिए E प्लस जी, गलत, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं, E प्लस H 180, F प्लस जी 180, E प्लस F 180, H प्लस जी 180. थर्ड क्रिएट होता है Z फॉर्मेशन. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में दो आएंगे रिलेशनशिप, B इज इक्वल टू H एंड C इज इक्वल टू E. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आई एम सेपरेटली ड्रॉइंग इट. इफ यू लुक एट दिस फॉर्मेशन तो B इज इक्वल टू H मिलेगा. And if you look at this formation, तो C is equal to E मिलेगा. B, H, C, E. Alternate interior angles are always equal. Fourth, corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग एंगल्स. ए इस चारों में टॉप लेफ्ट में, ई भी टॉप लेफ्ट में है, ए इज इक्वल टू ई. बी नीचे लेफ्ट साइड, नीचे लेफ्ट साइड एफ है, बी इज इक्वल टू एफ. सी इज इक्वल टू जी, डी इज इक्वल टू एच. रीजन, corresponding angles, matching angles are always same. And the last is C formation, जिसके अंदर के दोनों एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है. तो एक C यहां बन रहा है, BE, और BE इक्वल नहीं है, B प्लस E इज 180, और दूसरा यहां पे C बन रहा है CH, तो CH इक्वल नहीं, C प्लस H इज 180. If you are able to master these conditions, the entire chapter is in your control. Vertically opposite angles, linear pair, alternate interior angles, corresponding angles, and सबसे बेकार नाम क्योंकि बहुत लंबा है, interior angles on same side of transversal. तो
ए बी सी डी पैरेलल, सी डी ई एफ पैरेलल, वाई जेड 3:7, एक्स ढूंढना है। वाई जेड 3:7, तो y 3k और z 7k। मुझे x तक पहुंचना है, तो what I'm going to use is z formation. AB parallel to EF. This is the transversal. You can clearly see Z formation. Therefore, these two angles are same. तो अगर ये 7k है तो x भी 7k हो गया। And second thing which I'm going to use is C formation here. और ये C formation के हिसाब से 7k and 3k are supplementary. Interior angle on same side of transversal, which says 7k plus 3k is 180. 10k is 180, k is 18, and if k is 18, x is 7k, तुमको आंसर मिल जाएगा। एक एंगल दिया हुआ है GED 126, GED, this full angle is 126 and this is 90. तो 126 में से 90 माइनस करो तो ये एंगल मिल जाएगा 36। 36 90, तो बचा हुआ कितना? बिकॉज ये टोटल 180 होता है। वेर एवर अ सेमी सर्कल इज फॉर्म्ड 90 36, तो बचा हुआ एंगल ढूंढ सकते हैं 54। अनदर थिंग, there is parallel line and transversal system where I am looking at a Z formation. This and this lines are parallel. FE is the transversal. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा because alternate interior angles are same. तो मुझे मिल गया एक और एंगल 90. Now I'll shift my focus to the triangle. Which triangle? Triangle GFE. GFE. और GFE के अंदर एक एंगल 36, एक एंगल 90, तो बचा हुआ एंगल आराम से मिल जाएगा 54। ये 90, तो ये भी 90। And last, this angle, how to find out? Linear pair. I'm trying to highlight every angle possible so you can understand कैसे linear pair, straight line, branch, एक 54, तो दूसरा उसका linear pair 126. There are many methods of doing this sum and finding out whatever angle you want to. PQR 110, 130, QRS फाइंड करना है। इसमें एक चीज बाय हार्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू PQ। PQ और ST पैरेलल है तो अपने आप ये लाइन इसको भी पैरेलल हो जाएगी। टारगेट है टू फाइंड आउट this angle QRS, which is say X. The minute you draw line L parallel to PQ and ST, this is what happens. PQRK C formation हो रहा है। Therefore, these are interior angle on same side of transversal. तो 110 का बचा हुआ एंगल 70। TSRK
ओ, वहां पे भी इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो रहा है, ये सी फॉर्मेशन। तो 130 का बचा हुआ एंगल 50। एंड फाइनली यू कैन सी अ सेमी सर्कल इज फॉर्म्ड, black line is 180 degree, 70 50 x, you can easily find x. Find x and y. Very easy. Z फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे, ये रहा, this line and this line are parallel, this is the transversal, Z formation complete, this angle is 50, therefore this angle is also 50, x की वैल्यू मिल गई 50। फिर 127 का लीनियर पेयर means straight line and a branch. If this is 127, the remaining angle is how much? 53. And last is triangle. इसको angle sum property बोलते हैं। In a triangle, one angle is 50, other is 53. You can easily find the remaining angle y. PQRS parallel है। The first most important information given is PQ is parallel to RS. Now we have to prove AB parallel to CD. कैसे प्रूव करेंगे? By drawing altitudes. B से एक नॉर्मल ड्रॉ करो bx और C से एक नॉर्मल ड्रॉ करो cy. अकॉर्डिंग टू साइंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम वे हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. So science tells us 1 has to be equal to 2, 3 has to be equal to 4. And maths tells us कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो 90 डिग्री लाइंस बनाओ तो वो 90 डिग्री लाइंस भी पैरेलल होती। तो bx is parallel to cy because both are 90 degree lines to parallel lines. और bx cy parallel है तो I am suddenly looking at a z formation. bx cy parallel, bc transversal, alternate interior angles के हिसाब से 2 is equal to 3. ये मैथ्स ने बताया। अब 1 और 2 सेम, 3 और 4 सेम और 2 और 3 सेम, मतलब सारे सेम। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। और अगर सारे सेम तो सबको x ले लो। तो डू यू सी दिस where A, B, C angle is 2x and B, C, D angle is also 2x. ये तो alternate interior angles है। तो if alternate interior angles 2x, 2x are same, तो AB CD से पैरेलल होना ही चाहिए, वरना वो Z फॉर्मेशन और सेम एंगल हो ही नहीं सकते थे। और अगर सेम है तो ए बी सी डी पैरेलल है। वेरी वेरी सिंपल, लीनियर पेयर यूज करना है।
स्ट्रेट लाइन ब्रांच, तो 110 का लीनियर पेयर मिल जाएगा 70. वंस अगेन स्ट्रेट लाइन ब्रांच 135 का लीनियर पेयर, ये 45 एंड 45 और 70 का बचा हुआ एंगल यहां पे तुम फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्राइंगल फॉर्मूला. सम ओवर. Most important information, YOZO are bisectors. YOZO bisector मतलब this angle is same, this angle is same. पूरा 54 है, तो 54 के दो पार्ट करो, 27 पूरा 62 है. XYZ is a triangle, therefore x plus y plus z 180, x 62 y 54, तो z मिल जाएगा. z is equal to 64, और z अगर 64 डिग्रीज मिला तो उसका आधा 32, and then finally you will use the small triangle जिसमें एक एंगल 32 है, दूसरा एंगल 27 है, तो रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा. AB parallel to DE. The most important is AB DE parallel. तो मुझे Z फॉर्मेशन दिख रहा है. और Z फॉर्मेशन में if this is 35, this is also 35. (35, 53). Can you see a triangle CDE जिसमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक 35, एक 53, तो बचा हुआ एंगल मिल जाएगा. पूछा क्या है? DCE, यही पूछा है. Easily you can find out by using the triangle formula. टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. पहला काम PRT 40, 95, तो बचा हुआ एंगल फाइंड करो. 95 प्लस 40 135, 135 का बचा हुआ एंगल 45. अगर ये 45 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 45. And again now use the second triangle TSQ जिसमें एक एंगल is given as 45, दूसरा 75. You can easily find the third angle which is asked. X और Y ढूंढना है. What is given is PQ is parallel to SR और ST. PQ is parallel to SR, RT, ST जो बोलना है. तो मैं पहले ये Z फॉर्मेशन यूज करता हूँ. PQ parallel to RT ट्रांसवर्सल, तो ये 65, तो ये भी 65. I get this red angle as 65 because this angle is 65. रूल कौन सा यूज हुआ है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये 65 में से इतना 28 है, तो ये कितना? 65 माइनस 28,
37। अब दूसरा जेड फॉर्मेशन यूज करो, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और ये ले आओ तो 37, तो ये भी 37। फिर लीनियर पेयर यूज करो, स्ट्रेट लाइन ब्रांच, और ये ब्रांच का एंगल 65 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 115। और ये वाई ढूंढना है, तो ट्राइंगल फॉर्मेशन, ट्राइंगल पी क्यू एस, where P is given as 90, Q we have found out to be 37, तो ये एंगल ढूंढने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। One of the most difficult proof that sums, QTR QPR, QTR QPR। पहली चीज, देयर आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों को एक्स एक्स ले लो, और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, इसको वाई वाई ले लो। अब इफ दिस इज वाई वाई 2i, मैं टेम्पररी तुमको लीनियर पेयर दिखा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ब्रांच, दिस इज वन एंगल, दिस इज अनदर एंगल। अगर ये एंगल 2y है, तो ये कितना? 180 माइनस 2y, बिकॉज इट्स लीनियर पेयर। 2y 180 माइनस 2y, राइट दैट डाउन हियर, 180 माइनस 2y, दैट्स ऑल। अब आइसोलेट PQR ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR में Q 2x है और R 180 माइनस 2y है, तो P कितना? We have to find that out. P plus Q plus R is 180. P plus Q plus R is 180. 180 180 cut. P is equal to minus 2x plus 2y. Stop here. Then choose another triangle. T, ये रहा, QR। TQR में ये Q x है इतना, और R ये है, दोनों मतलब 180 माइनस 2y प्लस y, 180 माइनस y। T ढूंढो, T प्लस Q प्लस R 180 x sorry 180 minus y 180 180 180 cut, T is equal to minus x plus y। अब P और T क्वेश्चन में दिया है QTR QPR। QPR मतलब एंगल P, QTR मतलब एंगल T। ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। हाउ टू प्रूव? LHS QTR माइनस x प्लस y, RHX हाफ ऑफ QPR। QPR है माइनस 2x प्लस 2y, 2 कॉमन निकालो, कट हो जाएगा, बचा माइनस एक्स प्लस वाई। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS।
Theorems and axioms will be self-study because you have to by heart that. And examples also you can see from the textbook. Thank you so much.